dear students. Hope you all are fine and enjoying good health at home. So students, today we are going to start our Pak studies of class 8 and unit number 1. First of all, what you have to do is to mark your attendance in chat box, log in with your own name instead of your mobile name or any other name. You have to write your own name in the ID. So coming to the topic, that is unit number 1, ideological basis of Pakistan. In this chapter we are going to read, today's lecture we are going to read ideology, sources of ideology and the significance of ideology. What is ideology? Now what comes to your mind after listening to the topic, ideological basis of Pakistan? What is ideology? Ideology means nazariya. पाकिस्तान की नजरियाती असास, पाकिस्तान किस बुनियाद पे वजूद में आया, that is called the ideological basis of Pakistan. So starting with your topic, starting from page number 1, Pakistan came into existence on 14th of August 1947. During the 20th century, many nations got freedom and many free and independent states emerged on the map of the world. पाकिस्तान 14 अगस्त को वजूद में आया। 20वीं सदी में बहुत सी कौमों को आज़ादी नसीब हुई और कई आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकतें दुनिया के नक्शे पर उभरी। पाकिस्तान भी उनमें से एक है, लेकिन but the foundation of Pakistan was altogether unique and unprecedented. Means कि पाकिस्तान की बुनियाद बिल्कुल मुनफरिद और जुदागाना थी. Most of the countries got freedom on racial, linguistics और territorial basis. ज़्यादातर countries जो थे उन्होंने अपनी नस्ल, जुबान और इलाके की बुनियाद पर आज़ादी हासिल की. But Pakistan is the only country which came into being on the basis of the strong ideology. लेकिन पाकिस्तान जो है वो वाहिद मुल्क है जो एक मजबूत नजरिए के सबब वजूद में आया. And what is the basis of Pakistan? The basis of Pakistan is Islam. हमारी बुनियाद क्या है? इस्लाम है. The base, which provides guidance to the Muslims in every sphere of life. Islamic ways of living encompasses all aspects of human life. It has basic principles with reference to social, moral, political, religious and economic fields. दीन इस्लाम पाकिस्तान उनकी नज़रिए की असास है जो मुसलमानों की ज़िंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई करता है. इस्लामी नज़रियात इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है. ये मुआशरती, इखलाकी, सियासी, मजहबी और मुआशी शोबों के हवाले से बुनियादी असूलों का हामिल है. इस्लामी निज़ाम कुरान पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहदीस पर इस्तवार है. मीन्स इसकी बुनियाद ही कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग हुई है. यही निज़ाम पाकिस्तान की बुनियाद है. So coming to this system was declared the basis of Pakistan और यही system जो था वो पाकिस्तान में declare किया गया. What is ideology? Now on the next page, on page number 2, there is given the definition of ideology according to two different aspects. The Urdu word nazariya is known as ideology in English. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ideology means such a plan or program as is based upon philosophy and application to solve political, social and cultural issues and problems according to the definition given in the World Encyclopedia. लफ्ज़ नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफक्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करता हो. मतलब for example you can say that it comprises of political, religious, social, moral and economic fields. वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया में जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये है, आइडियोलॉजी ऑफ ideology is a set of political and cultural principles on which a nation or civilization is based. Moreover, the definition of ideology is the ideology of Pakistan is the name of creating a society on the principles of Quran and Sunnah. नजरिया सियासी
उसूलों का मजमूआ है जिस पर किसी कौम या तहजीब की बुनियादें इस्तवार होती हैं। इन द वर्ड्स ऑफ जॉर्ज ब्रेस, और उसके बाद उन्होंने जॉर्ज ब्रेस की कोटेशन यहाँ पे की है कि वो आइडियोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं। ही सेज दैट एनी प्लान और प्रोग्राम ऑफ कॉमन लाइफ बेस्ड अपॉन थिंकिंग एंड फिलॉसफी इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। आम जिंदगी का कोई भी असूल या कोई भी प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फिक्र फलसफा पर इस्तवार हो आइडियोलॉजी कहलाता है। सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी, व्हाट आर द मेन सोर्सेज? सो कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट आइडियोलॉजी, हमने आइडियोलॉजी को डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। कि आइडियोलॉजी हमारे पास फॉलोइंग एलिमेंट्स लीड्स टू द sources formation of an ideology among people। लोगों में नजरिया बनता कैसे? So first of all there are few points discussed in your book। First one is common religion, common race, common language and residency, common political purposes and common customs। अगर हम उर्दू में देखें तो इन्हें हम कह सकते हैं एक जैसा मजहब होना, एक नस्ल से ताल्लुक रखना, एक जुबान से ताल्लुक, एक जगह रहना, एक ही जुबान बोले जाना, और देन कॉमन पॉलिटिकल पर्पसेस, सबका बुनियादी सियासी मकसद एक होना, और देन रस्मो रिवाज, किसी भी जगह के रस्मो रिवाज। Then religion is not only a set of adoration but it has profound impacts on the whole of the social life। मजहब से the religion doesn't mean that you are only stick to one thing, that is prayers only। मजहब सिर्फ इबादत का मजमुआ नहीं होता बल्कि वो पूरी मुआशरती जिंदगी पर गहरे असरार करता है। हर मजहब ने समाजी ताल्लुकात को मखसूस नजरियात की रोशनी में इस्तेमाल किया, मजबूत किया। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देखें, आपकी बुक में यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, द यूरोपियंस, द जापानीज, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स वांट टू लीड देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियंस रिस्पेक्टिवली। हर मतलब हर कौम जो थी, यूरोपियन, ईसाई, जापान, मतलब हर एक की डिफरेंट रिलीजन है और हर कोई अपने मजहब के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। अब यूरोप में लोग ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं, जापान में बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्ध मत को मानते हैं, हिंदू जो हैं वो हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं, वो चाहते हैं कि वो उसमें रहें, और उसके मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं और हम उसी की तरह उसी के तहत हम जिंदगी बसर करना चाहते हैं। देन कमिंग टू द कॉमन रेस मीन्स एक नस्ल से ताल्लुक रखना। कॉमन आइडियाज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन रेस। मुश्तरका नस्ल से ही मुश्तरक एक जैसे नजरियात पैदा होते हैं। एक ही नस्ल के लोगों में हमदर्दी, अखुवत के जज्बात का परवान चढ़ना भी एन फितरी अमल है। मीन्स कि आप जहाँ एक साथ रह रहे हैं तो वहाँ पे आपकी थॉट्स भी एक दूसरे से मिलती हैं। सो रेसिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच बिकॉज ऑफ कॉमन आइडियाज बाइंड्स द ह्यूमन बीइंग्स इन ब्लड लाइक रिलेशनशिप। हम नस्ली एक मजबूत बंधन है जो मुश्तरक नजरियात के बायस इंसानों को खूनी रिश्तों में मुंसलिक किए हुए हैं। देन कॉमन लैंग्वेज एंड रेजिडेंसी। लैंग्वेज इज द मीनिंग्स ऑफ कन्वेइंग द फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स एंड थॉट्स टू अदर्स। अब लैंग्वेज क्या है? एक ऑब्वियसली आपने अगर अपनी कोई फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपनी थॉट्स, अपने ख्यालात दूसरों से शेयर करने हैं, देन व्हाट यू डू, आप मतलब आपको ये ऐसा है ना कि दूसरा भी आपकी जुबान समझे जिस लैंग्वेज में आप उनसे बात कर रहे हैं। जुबान ही के जरिए लोग अपने जज्बात और एहसासात और ख्यालात दूसरों तक पहुँचाते हैं जिससे नए नजरियात तश्कील पाते हैं। लोगों के तौर तरीकों और नजरियात में यकसानियत काफ़ी हद तक मुश्तरका रहाइश का मखबून मिन्नत है। मीन्स दे डिपेंड्स अपॉन द कॉमन लैंग्वेज एंड रेजिडेंसी। कॉमन पॉलिटिकल पर्पसेस। Because of the common political purposes and political ideas, most of the nations of the present age try to achieve political freedom for the survival of their national life so that they may become a strong nation। दौरे हाजिर की बेशतर कौमें अपने मुश्तरका सियासी मुकाबले और सियासी नजरियात की बदौलत अपनी कौमी जिंदगी की बका के लिए आज़ादी हासिल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अब ये ताकि वो एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन के पूरी दुनिया के सामने आए। सो नेक्स्ट इज द कॉमन कस्टम्स। हमारे रवायात भी तो एक जैसी हैं, दैट्स व्हाई वी हैव द
the same ideology. Common customs have played a vital role, एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं in the formation and development of ideas in every age. Common customs create ideological harmony with respect to culture and thoughts. मुश्तरका रस्म रिवाज की वजह से आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक जैसे जब आपकी रस्म रिवाज होंगे, लोगों में सकाफती और फिक्री एतबार से नजरियाती हम आंगी पैदा होती है। नेक्स्ट इज नाउ कमिंग टू, we had already discussed these two topics. Now coming to this one, the significance of ideology, कि इसकी अहमियत क्या है हमारी लाइफ में। What is the नजरिए की अहमियत क्या है? There are a few points discussed in your book. Man has been sent to this world with some purpose. इंसान दुनिया में किसी मकसद के तहत ही भेजा गया है। Purposeless life never gets success. अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, then you will get no success. The existence of nations is reflected through their ideas. और कौमों के वजूद का पता उनके नजरियात से ही चलता है। Ideas create consciousness of purpose among nations. These ideas lead the nations towards success. नजरियात कौमों में मकसद का शऊर बेदार करती हैं और नजरियात से ही कौमें कामयाबी की तरफ हमकनार होती हैं। Next is ideas provide the foundation to any political, economic, social and cultural movements. Means कि जो हम ये मुख्तलिफ तहरीक, यहाँ पे मूवमेंट में जो तहरीक चलाई हुई है, दैट कि नजरिया ही किसी सियासी, माशी और माशरती या सकाफती ट्रेडिशनल तहरीक को एक स्ट्रॉन्ग पिलर प्रोवाइड करता है, एक को बुनियाद फराहम करता है। आइडियाज आर द एक्सेस अराउंड विच लाइफ रिवॉल्व्स। नजरिया इंसानी जिंदगी का महवर है जिसके गिर्द इंसान इसकी कुव्वत मुहर्रिका का दूसरा नाम है। It is the second name of motivating force. It gives you motivation to do something, and then ideas provide discipline to various aspects of human life. अब इंसान नजरिया इंसान एक दूसरे के साथ डिफरेंट आपको नज़्म ज़ब्त सिखाता है, एंड देन आइडियाज जो हैं प्रोवाइड डिसिप्लिन, एंड देन आइडियाज डिटरमिन द नेशनल ड्यूटीज एंड राइट्स, और आपको आपकी कौमी हकूक़ और फ़राइज़ का तायन करता है। Ideas just like something which is invisible, but the nation look live and dynamic because of it. लेकिन हमें ऐसे तो लगता है कि जो नजरिया है वो दिखने में तो कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अक़वाम इसी की बदौलत, जो कौमें हैं इसी की बदौलत जिंदा और मुतहर्रिक नजर आती हैं। इफ अ नेशन इग्नोर्स इट्स आइडियाज, अगर हम अपने नजरिए को, हम अपनी बुनियाद को ही इग्नोर कर देंगे, it endangers its existence, and some new idea tries to merge this nation and changes its identity. और फिर क्या होता है कि इसका वजूद खतरे में पड़ जाता है और कोई दूसरा नजरिया इसे अपने अंदर जम करने के लिए कोशिश हो जाता है। So we had covered all these 3 points of today's lecture. Then last is the on your book on page number 3 meanings of the ideology of Pakistan. कि आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का क्या मतलब, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि it is the name of creating a society on the principles of Quran and Sunnah. कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें एक अलग मुल्क की ज़रूरत थी, और फिर हम जो है ताकि हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के अकॉर्डिंग गुजार सकें। एज यू नो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री में जब बरसगीर में मुसलमानों पर जुल्म जो किए जाते थे, उन्हें अपनी इबादत खुलेआम करने की इजाज़त नहीं थी। सो पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। पाकिस्तान एक नजरियाती मुमलिकत है जिसकी बुनियाद एक फलसफा हयात पर इस्तवार की गई। ये फलसफा दीन इस्लाम है। पाकिस्तान की तमाम तरासात दीन इस्लाम है। हमारी एंड इसका इस सरजमीन पर निफाज सदियों तक रहा है। यही वो लाइमल और जज्बा है दिस इज द बेसिस दैट द जो तहरीक पाकिस्तान का मौजब बना, जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो मूवमेंट स्टार्ट की गई। Then ideology of Pakistan means ideology of Islam. No doubt the Islamic ideology is the foundation of the ideology of Pakistan. The Muslims ruled the subcontinent for centuries. मुसलमानों ने बरसगीर पर सदियों तक हुकूमत की। They continued living freely according to the teachings of their Islam, और वो उन्होंने आज़ादी से जो है वो
अपनी इस्लाम की तबलीग की, ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन जैसे ही द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल कॉज्ड हार्म टू द फ्री स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन इस्लाम ड्यूरिंग द रेन द मुस्लिम्स वर ऑप्रेस्ड, और जैसे ही इन्होंने अंग्रेजों ने का राज खत्म होने लगा तो साफ नजर आ रहा था कि बरसगीर पर हिंदू अक्सरियत की हुकूमत कायम हो जाएगी और मुसलमान अंग्रेजों की आर्जी गुलामी से निजात पाकर हिंदुओं की दायमी गुलामी के शिकार हो जाएंगे। और फिर ये हुआ कि गैर मुस्लिमों के इक़्तिदार में मुसलमान मजबूर और महकूम रहे। पहले तो वो अपनी जिंदगी आज़ादी से गुजार रहे थे, लेकिन बाद में जैसे ही ब्रिटिश ने रूल किया तो वो लोग उनपे मतलब उनके दब के रह गए, वो मजलूम हो गए। During the when the British rule was near to end, अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही अंग्रेजों को लगा कि उनका वहाँ पे हुकूमत खत्म हो रही है तो उनने पूरा यकीन था कि अब जब हिंदुओं की हुकूमत होगी तो मुसलमानों के हमेशा के लिए गुलाम बन जाएंगे। It was feared that after getting the Muslims will become the permanent slaves of Hindus. Many Muslims dignitaries including Sir Syed Ahmad Khan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah and Allama Iqbal started their efforts for the security of dignity and freedom of the Muslim community in the subcontinent. So that is कि फिर बाद में ऐसा हुआ कि सर सैयद बहुत से मुस्लिम नामवर शख्सियात जैसे कि सर सैयद अहमद खान, कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल और कई दूसरे मुस्लिम अकाबरीन ने बरसगीर के मुस्लिम अवाम के तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और आज़ादी के लिए कोशिशें शुरू कर दी, so that they could get the separate homeland according to the ideology of Islam। और इन्हीं अकाबरीन की कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया। So definition of the ideology of Pakistan is the name of creating a society based on the principles of Quran and Sunnah। The ideology of Pakistan is the name of practicing the principles of Islam. It is also the name of thinking to get the laboratory to test these principles। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान इस्लाम के असूलों पर अमल करने और एक तजर्बा गाह के हसूल के लिए सोच का नाम है। The ideology of Pakistan is the name of steps that were taken for the security of political, social, cultural and economic values of the Muslims। नजरिया पाकिस्तान सियासी, मुआशरती, सकाफती और मुआशी कदरों की हिफाजत के लिए किए जाने वाले इक़दामात का नाम है। Then the ideology of Pakistan is the name of practical efforts for establishing the rule of Islam and strengthening the unity among the Muslims without losing the national identity। अपने मिली तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान में इस्लाम की हुक्मरानी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अमली कोशिश का नाम नजरिया पाकिस्तान है। The ideology of Pakistan is the name of a welfare state where the welfare of the people is considered, and in the end I would like to tell you कि नजरिया पाकिस्तान एक ऐसी रियासत के क़याम का नाम है जहां अवामी फलाह बहबूद का ख्याल रखा जाए, जहां लोगों का ख्याल रखा जाए, and our Pakistan is based on this ideology। So that is all about today's lecture। If you have any sort of questions you may ask, and then now is our homework। You have to learn and solve question number 1 of short questions from your textbook, and then question number 1 of long questions, and also make 10 MCQs from page number 1 to 3 that comprises of today's lecture। Thank you very much। Stay blessed। Allah Hafiz। Is there any question?